Hi everyone, my name is Srishti Deshmukh Gowda and I am an IAS officer of 2019 batch. Recently, I came out with a book on answer writing named the Answer Writing Manual. Answer writing for UPSC CSE examination is a very important thing, and this video is I will be sharing my own strategies and tips about answer writing. Whatever I have learned in the course of my preparation, I will be sharing it with you. I will also give you a glimpse of what all is included in the book Answer Writing Manual. So in the course of my preparation, I realized that UPSC answer writing is the most important thing which will affect your rank and your service. If you see the scores, the mains is the marks along with the interview which is added in the final score. So in order to secure a very good rank and a very good service, you have to be good in answer writing. When I was preparing, prelims was a part which I used to be scared about. But answer writing, I had practiced so much. I tried to use all the blogs, the books, and take help from mentors and kept improving it day by day. So I had a bit of confidence in that part. In my very first attempt, in the GS marks, I was able to secure 470, which was the highest for that year. So in this video, I will be sharing with you those tips and strategies which I felt would be game changing for all of you. We face a lot of difficulties because we see resources, what books to read. We also see what magazines to refer to, the newspapers to refer to. But answer writing is a part where we are unsure how to start. The beginner's mental block is very much there in answer writing. Now, how to deal with that? A lot of aspirants also in the course of the past 2 or 3 years have asked me questions and queries regarding that. So I will try to share with you whatever I have learned in the coming time. So to start, why is answer writing important? As I told you that the final rank of yours will be decided by your main score, and mains is all about what you write in those 9 papers. So we are supposed to give 9 papers, 4 GS papers, 2 papers from the optional, 1 essay paper and 2 language papers. जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा वो बनेगा 4 GS के पेपर्स, 2 ऑप्शनल के पेपर्स और आपका 1 ऐसे का पेपर. इनका टोटल सम आपका फाइनल मेंस का स्कोर बनता है. अब सबसे पहली बात, शुरू कैसे करें? कभी भी आपके पहले दिन ऑफ प्रेपरेशन से हमें आंसर राइटिंग शुरू नहीं करनी है. कई बार हमें लगता है कि अब हम राइटिंग शुरू मतलब हमने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो आंसर राइटिंग भी साथ में शुरू कर दें. ऐसा नहीं कर सकते हैं. कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करना आवश्यक है जिसके पहले हम आंसर लिखेंगे. पहली चीज़ है, नो द सिलेबस. यू शुड नो व्हाट द सिलेबस इज एग्जैक्टली. उसका एक प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए और उसका थरो एनालिसिस करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए. GS 1, 2, 3, 4 एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में सारे सिलेबस UPSC द्वारा दिए गए हैं. उसको अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए उसको लर्न कर लें ताकि आपके टॉप ऑफ द हेड में रहे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे. एक चीज़ होगी सिलेबस को जानना. दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना कि एग्जैक्टली UPSC अपने पेपर्स में क्या पूछता है. व्हाट इज़ इट दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली you should be reading the previous year papers every day at least about half an hour. और आप पिछले 5 साल के UPSC मेंस के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं. When you read each and every question, you will know कि उस टॉपिक में से कैसे हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टॉपिक एक ही रहता है बट पूछने का तरीका और करंट अफेयर से उसको रिलेट करके एक नया क्वेश्चन UPSC हमारे सामने रखता है. तो ये हो गई सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें आंसर राइटिंग करने के पहले ज़रूर करनी चाहिए. और थर्ड थिंग है बिल्डिंग योर नॉलेज बेस. इसका मतलब किसी भी टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ें, उसको जानें. एटलीस्ट हमें फाउंडेशन NCERTs तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है.
Without reading the foundation NCERTs, please do not jump into answer writing. Along with NCERTs, you can also refer to the standard books. हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हों या आप तीनों चीज़ें साथ में कर रहे हों, उसके बाद ही प्लीज़ देन ओनली अटेम्प्ट राइटिंग एन आंसर। सो दिस वाज द प्री रिक्विजिट। नेक्स्ट नाउ इसी प्रकार मैंने अपनी किताब में भी इसके बाद चारों जीएस पेपर्स को किस तरह से अप्रोच करना है प्रेपरेशन में, वो बताया है। It's almost like the better your preparation for general studies will be, the more organized your notes of the preparation will be, the better your answers will be. This is because the better you are studying and consolidating all your notes, जितना अच्छे तरीके से आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक साथ लिखते जा रहे हैं, उतना ही बेहतर तरीके से नॉलेज एक साथ कंसोलिडेट होता जाएगा और आप उसके आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे। लेट्स टेक अप द जनरल स्टडीज पेपर 1। Paper 1 is about history, geography, some topics of society. Now, all of this is mostly on the static side of the syllabus. Static means जो facts होते हैं, definitions होती हैं, या जो historical चीज़ें होती हैं, geographical जो इतनी ज़्यादा बदलती नहीं हैं। तो static portion थोड़ा हमारा general studies paper 1 में ज़्यादा रहता है। उसमें Indian National Freedom Movement के बारे में भी पढ़ना है and other things. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे हम कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमेशा जो हर साल आपको उस पेपर में ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि एक है थीम रोल ऑफ गांधी जी। रोल ऑफ गांधी जी इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो हमें ऐसे कुछ टॉपिक्स थीम्स आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए जिसमें हर साल सवाल आते हों। उनके अगर हम अच्छे से फ्रेमवर्क्स रेडी कर लेते हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स सारे ले लेते हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम अच्छे से एक जगह पे नोट कर लेते हैं, तो वो वाला हमारा आंसर बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। दिस इज़ बिकॉज यू वुड बी प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क अहेड ऑफ द एग्ज़ाम। तो हर जीएस पेपर में से ऐसे कुछ थीम्स को निकाल लीजिए। जीएस पेपर 1 में रीजनलिज्म एक और ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन ऐसा थीम है जो हर बार पूछा जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी मिलता है तो उसको आप ज़रूर अपने पास नोट कर लें और स्टैटिक के नोट्स के साथ उस करंट फैक्ट को मिक्स करके फिर जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो एक कंप्लीट और एक रेलेवेंट